नहीं कर सकता। आज आईएमएफ डेलीगेशन आया हुआ है, वो इसीलिए आया हुआ है जनाब स्पीकर कि पाकिस्तान में पूछे कि आपका रूल ऑफ लॉ तो है ही नहीं। यहां पे ये बहुत बड़ी मतलब जश्न मना रहे हैं कि जी महंगाई कम होगी है। मेरे साथ आ जाएं गवर्नमेंट के लोग, आ जाएं, ये फॉर्म 47 वाले बाजारों में जरा फिरे, इनको जूतियां पड़ेंगी, ये किसी को कहेंगे जी महंगाई कम हो गई है। आप बाकियों को छोड़ो जनाब, इनको जूतियां पड़ेंगी आपको, आप जूतियों के लायक हैं। ये जूतियां का लफ्ज को मैं एक्सपंज कर रहा हूं। जूतियों के लायक हैं, आपके पास और कोई है नहीं। आपको जूतियां भी पड़नी चाहिए, आपको छत्तर भी पड़ने चाहिए। अवाम का आपने जो हाल किया है, बलोचिस्तान आए जनाब स्पीकर, यहाँ पे किसी फेडरल मिनिस्टर को मैं कहता हूँ आ जाए। मैंने एक्सपंज कर दिया, तशरीफ रखें जनाब स्पीकर। तुम लोग बगैरत हो, तुम लोगों ने ये भी एक्सपंज कर रहा हूं, तुम हो ही बगैरत, ये भी एक्सपंज कर रहा हूं जी। बात कीजिए, इनमें क्या है, इनमें किस पे एहलियत है जनाब स्पीकर? ये आज है बलोचिस्तान में आग लगी है जनाब स्पीकर, तशरीफ आग रखें, हज़ला में पाकिस्तान का झंडा, तशरीफ रखें, मैं वो सारे लफ्ज एक्सपंज कर दूंगा। ना ये लाइव जाएंगे ऐसे अल्फाज और ना ये रिकॉर्ड का हिस्सा होंगे, एक्सपंज हो जाएंगे। तशरीफ रखें जी, बात करें जनाब स्पीकर। शुक्रिया। I'd like to move that the bill further to amend the Members of Parliament Salaries and Allowances Act 1974, the Members of the Parliament Salaries and Allowances Amendment Bill 2025 has been passed by the Senate to be taken into consideration at once. Minister of Parliamentary Affairs, do you oppose it? I don't oppose, sir. Now I put the motion to the House. The question is that bill further to amend the Members of Parliament Salaries and Allowances Act 1974, the Members of Parliament Salaries and Allowances Amendment Bill 2025 as passed by the Senate be taken into consideration at once. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it. Consequently, the motion is adopted. Now, clause by clause. There is an amendment in clause 2 standing in the name of Rumina Khurshid Alam. Kindly move your amendment, Rumina Sahaba. I would move that the bill further to amend the Member of the Parliament Salaries and Allowances Act 1974, the Members of the Parliament Salaries and Allowances Amendment Bill 2025 be passed, sir. Minister for Parliamentary Affairs, do you oppose it? Minister for Parliamentary Affairs? I don't oppose, sir. Now I put the amendment as moved by Rumina Khurshid Alam to the House. The question is the amendment as moved be adopted. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it. Consequently, amendment is adopted. Now I put the question is that clause 2 do stand part of the bill. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it. Consequently, clause 2 as amended stands part of the bill. The question is that clause 3 do stand part of the bill. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it. Consequently, clause 3 stands part of the bill. The question is that clause 1, preamble and short title do stand part of the bill. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it. Clause 1, preamble and short title stands part of the bill. Rumina Khurshid Alam Sahaba to move item number 36. To move that the bill further to amend the Member of the Parliament Salaries and Allowances Act 1974, the Members of the Parliament Salaries and Allowances Amendment Bill 2025 being passed. Now I put the motion to the House. The question is the bill further to amend the Members of Parliament Salaries and Allowances Act 1974, the Members of Parliament Salaries and Allowances Amendment Bill 2025 be passed. All those in favor of it may say aye. Aye. All those against it may say no. I think ayes have it. Motion is adopted. Consequently, bill is passed. अब हम कौन से आइटम अब लेना है जी आजम साहब, लॉ मिनिस्टर साहब? आइटम नंबर 37? नहीं सर, 37 का देख ले जी पहले, बाकी तो रेफर होना है जी। आइटम नंबर 37 इसमें सर मैंने रिक्वेस्ट की है, कुछ इसमें मुशावरत की ज़रूरत है, तो मूवर कहते हैं कि जिसे डिफ़र कर दिया जाए। ओके, ये डेफर हो गया जी। आइटम नंबर 38 भी डेफर हो गया। आइटम नंबर 39 जो था रफ़ीउल्लाह साहब का भी, इसका भी रिक्वेस्ट यही आई थी जी। नवीद कमर साहब का माइक खोलें कह देंगे जी। रफ़ीउल्लाह साहब, थैंक यू
थैंक यू जनाब स्पीकर। जनाब स्पीकर, अपोजिशन का काम ये है कि एक शख्स के गिर्द हमेशा बात करना, आवाम की बात नहीं करना, लोगों की बात नहीं करना, पार्लियामेंट की बात नहीं करना, जमहूरियत की बात नहीं करना, आइन साजी नहीं करना और गुर्बत के ऊपर बात नहीं करना। तो ये एक शर्मनाक हरकत से ये कब बाज आएंगे? आज प्राइवेट मेंबर डे, इनको चाहिए कि हमें सपोर्ट करते हैं। सर, मैंने जो मूव कर रहा हूँ उसके लिए मैंने आपसे टाइम मांगा हूँ कि हम पार्टी में इसके ऊपर और भी बात करें, लेकिन सिर्फ इसकी स्पिरिट में बताना चाहता हूँ। हम चाहते हैं कि हर पार्लिमानी सेक्रेटरी अपनी मिनिस्ट्री के अलावा तमाम हाउस बिजनेस कर सके, जो कि मैं पिछली मरतबा जब पार्लिमानी सेक्रेटरी था तो इसका मैंने सामना किया। तो ये एक अच्छी चीज़ है, इंशाल्लाह पार्टी में और पार्लिमानी पार्टी के लोगों से मुशावरत करके इसको नेक्स्ट रोटा डे पे फिर रख लेते हैं। अच्छी बात है जी, शुक्रिया। इसको भी हम डेफर कर देंगे अभी। नेक्स्ट हम कॉल अटेंशन पे आ जाएंगे। लॉ मिनिस्टर का माइक खोलें। सर, मेरी ये रिक्वेस्ट थी कि नंबर 3 ऑनवर्ड ज़रा लेजिस्लेटिव बिजनेस हो जाए तो बेहतर है, उसके बाद फिर जो डिस्कशंस हैं वो। लेजिस्लेटिव तो हो गया ना जी सारा, इंट्रोडक्शन है, जो इंट्रोडक्शन है बिल्स का। हाँ वो आ जाते हैं। जी, इंट्रोडक्शन ऑफ बिल आइटम नंबर 3, शाहिदा रहमानी साहब 3। बहुत शुक्रिया स्पीकर साहब। I would like to move for leave to introduce a bill further to amend the Pakistan Environmental Protection Act 1997, the Pakistan Environmental Protection Amendment Bill 2025. जी, Minister for Parliamentary Affairs, do you oppose it? Sir, this may be referred to the standing committee concerned. Okay, ji. Now I put the motion to the House. The question is a leave to introduce a bill further to amend Pakistan Environment Protection Act 1997. The Pakistan Environment Protection Amendment Bill 2025 be granted. All those in favor of it may say aye. All those against it may nay. So I think ayes have it. Leave to introduce it. Shahida Rahmani Saab to move item number 4. The salient feature, इसके अगर आप इजाज़त दें तो बता दो। जी, the bill stands introduced. शाहिद खटक साहब का माइक खोलें। जी स्पीकर साहब, फॉर्म 47। जी, द हाउस इज इन ऑर्डर। जी आजम साहब, मैंने ये ऑफर कर दिया है, जो तनख्वाह नहीं लेना चाहता वो लिख के दे दे, हम बिल्कुल ले लें। जी, आइटम नंबर 5, शर्मिला साहिबा फारूकी हशाम साहिबा। I rise to move for leave to introduce a bill to provide compulsory blood tests for proposed spouse for thalassemia, the Islamabad Capital Territory Compulsory Thalassemia Screening Bill 2025. जी, मिनिस्टर पार्लियामेंट्री अफेयर्स, डू यू अपोज इट? सर, मैं आई डोंट अपोज, लेकिन एक रिक्वेस्ट होगी। आपने बड़ी अच्छी बात की है। मेरे ख्याल में हमें किसी पे भी कोई चीज़ इम्पोज नहीं करनी चाहिए, जबरदस्ती नहीं कर सकते। वो ये फ्लोर ऑफ हाउस पे मैं बात कर रहा हूँ बतौर मिनिस्टर पार्लियामेंट्री अफेयर्स। वो मेंबर्स जो आपको इन्फॉर्म करेंगे सर, दे शुड बी इंटाइटल्ड फॉर द इंक्रीज सैलरी। दोज हु डोंट इन्फॉर्म द स्पीकर ऑफिस, अगर कोई ज़बरदस्ती तो नहीं है ना सर किसी के साथ। एक लॉ पास हुआ है जी, उस लॉ की सब पे होनी चाहिए इम्प्लीमेंटेशन। तो जो नहीं लेना चाहते वो लिख के दे दें कि हम नहीं लेना चाहते। जो नहीं लेना चाहते वो लिख के दे दे, लेकिन तकरीरें नहीं करें। अच्छा जी, अब बताइए, डू यू अपोज दिस? I don't oppose. This may be referred to the committee, sir. Now I put the motion to the House. The question is that leave to introduce the bill to provide compulsory blood tests for proposed spouses for thalassemia. The Islamabad Capital Territory Compulsory Thalassemia Screening Bill 2025 be granted. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it. Leave to introduce the bill is granted. Sharmila Saiba Faruqi Hassam Saiba, please move item number 6. Sir, I rise to introduce the bill to provide compulsory blood test for proposed spouse for thalassemia, the Islamabad Capital Territory Compulsory Thalassemia Screening Bill 2025. The bill in question stands introduced. Dr. Nafisa Shah Saiba to move item number 7. Thank you, Speaker Saab. I move for leave to introduce a bill to provide for the corporate social responsibility in profit-making companies,
the Corporate Social Responsibility Bill 2025. जी मिनिस्टर Mr. Parliamentary Affairs. Sir, may be referred to the committee concerned. उसमें discuss हो जाए. Now I put the motion to the House. The question is the leave to introduce a bill to provide for corporate social responsibility in profit-making companies. The Corporate Social Responsibility Bill 2025 be granted. All those in favour of it may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it. Consequently, leave to introduce the bill is granted. Dr. Sabha to move item number 8. जी डॉक्टर साहब का माइक खोलें जी. I introduce a bill to provide for the corporate social responsibility in profit-making companies, the Corporate Social Responsibility Bill 2025. The bill stands introduced. Rana Mohammed Qasim Noon साहब to move item number 9. पीरजादा साहब ये थोड़ा सा लेके फिर मैं आपको देता हूँ. कासिम नून साहब नहीं है. जी राना कासिम नून साहब जी. लॉ मिनिस्टर साहब आप कुछ कह रहे थे. मुअज़्ज़ज़ रुकन से की थी सर. हमने एक तरीकाकार बनाया था कि इसमें जो कंसर्न्ड इंस्टीट्यूशन है, इसमें हायर एजुकेशन कमीशन है और मिनिस्ट्री, उनका एनओसी हो जी. तो वो अवेटेड है. मैंने इन्हें रिक्वेस्ट की थी कि उसके होने तक इसे रोक लिया जाए सर, वरना फिर कॉम्प्लिकेशंस है. कल को अगर नहीं आता, कमेटी बैठ के डिलिबरेट कर लेती है, दे वुड बी अवेटिंग एनओसी. तो बेहतर है सर कि आज बल्कि ये भी फरमा दें आप कि अगर मुनासिब हो तो जब एनओसी हो तो इस इंट्रोडक्शन पे लाया जाए सर. चीज़ें आसान हो जाएंगी इसकी वजह से. टाइम सेविंग भी हो जी. दिस मे बी डिफर्ड फॉर जी. राना कासिम नून साहब जी. I agree with you. Item number 9 and item number 10 have been deferred. Suhail Sultan साहब to move item number 11. टेकअप करना चाह रही हैं इसलिए अंदर चली गई. ठीक है जी. ड्रॉप. आइटम नंबर 19 ड्रॉप. उसामा मेला साहब टू मूव आइटम नंबर 19. उसामा मेला साहब. Thank you, Janaab Speaker. I beg leave to move for leave to introduce a bill further to amend the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan, the Constitution Amendment Bill 2025, Article 59. जी लॉ मिनिस्टर साहब वो तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना चाह रहे हैं. डू यू अपोज? मैंने पहले भी अर्ज़ किया था कि इसमें एक हम मैकेनिज़्म बनाया कि उसके लिए हमें अपनी पार्लिमानी पार्टी से भी कंसल्ट करना चाहिए और रिक्वायर्ड नंबर जो हैं कम अज़ कम वो राइज़ हों. अभी मीनवाइल वो चीज़ें हो रही हैं, इसे कमेटी के सुपुर्द किया जाए. इसी तरह की एक मूव जो है वो सेनेट में भी है. दिस इज़ रिगार्डिंग दी मिनॉरिटी सीट्स, जो कोटा इंक्रीज़ हैं इन सेनेट. उस पर वहाँ वैसे डिस्कशन हुई थी कि जो पॉपुलेशन के तनासुब से अल्हम्दुलिल्लाह आर मिनॉरिटीज़ आर नॉट अंडर रिप्रेजेंटेड. जो पॉपुलेशन का तनासुब है 3.60% पाकिस्तानी हमारे जो हैं वो नॉन मुस्लिम भाई बहनें हैं. तो उस हिसाब से माशाल्लाह कौमी असम्बली सेनेट में अच्छी रिप्रेजेंटेशन है. बट आई don't oppose right now. This may be discussed in the committee, so the same be referred to the Standing Committee for Law and Justice. Now I put the motion to the House. The question is the leave to introduce a bill further to amend the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan. The Constitutional Amendment Bill 2025, Article 59 be granted. All those in favour of it may say aye. Aye तो कोई नहीं कह रहा, वो मूवर भी नहीं aye कह रहे. तो मूवर साहब जी. All those in favour of it may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it. Leave to introduce the bill is granted. Naveed साहब item number 22 move कीजिए. नवीद साहब का माइक खोलिए जी. Honorable Speaker Sahab, I introduce the Constitution Amendment Bill 2025, Article 59. The bill in question stands introduced. Sharmila Faruqi Assam Sahaba to move item number 23. Sir, I rise to move for leave to introduce a bill to establish an effective system of protection, relief and rehabilitation of women, children and any vulnerable person against domestic violence. The Domestic Violence Prevention and Protection Bill 2025. Minister for Parliamentary Affairs, do you सर oppose इसमें मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि एक गवर्नमेंट बिल जो है दैट इज़ ऑलरेडी अंडर कंसिडरेशन. मैं फाजल रुकन से ये गुजारिश करूँगा कि अगर वो इसे डिफ़र करा लें और उसमें अमेंडमेंट्स मूव कर दें, कमेटी स्टेज पे भी ये इनवाइट हो जाएंगी. बिकॉज व्हाट आई हैव बीन टोल्ड कि ये ऑलरेडी अंडर कंसिडरेशन है यहाँ पे. तो फॉर टाइम बीइंग अगर इसे या डिफ़र करवा लें या विड्रॉ कर ले, या शी कैन मूव अमेंडमेंट्स देयर इन द कमेटी, शी वुड बी इनवाइटेड इन दैट रिगार्ड. जी. शर्मिला साहबा.
जी Sir, I would request the minister to refer this bill to the committee. जो बिल मैं लेकर आती हूँ उसमें अक्सर ये कहते हैं कि government is already in the process of moving a bill. नहीं, अभी आपका पहला भी एक गया है जी। सर हर बिल में मिनिस्टर साहब इज़ वेरी काइंड, वो यही कहते हैं कि गवर्नमेंट भी एक बिल मूव कर रही है, इसको भी कमेटी में भेज दें एंड देन दे कैन डिलिबरेट ओवर दिस बिल। काइंड मिनिस्टर साहब बताइए, मिनिस्टर फॉर पार्लियामेंट ठीक है जी। उन्होंने इतने दावे से कहा है तो भेज दे जी। मैं Now क्या I कह put the सकता motion to the House. The question is the leave to introduce a bill to establish an effective system of protection, relief and rehabilitation of women, children and any vulnerable person against domestic violence. The Domestic Violence Prevention and Protection Bill 2025 be granted. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it. Leave to introduce the bill is granted. Sharmila Sahiba to move item number 24. Sir, I rise to introduce a bill to establish an effective system of protection, relief and rehabilitation of women, children and any vulnerable person against domestic violence. The Domestic Violence Prevention and Protection Bill 2025. The bill in question stands introduced. The Law Minister साहब और honourable members, मैं एक request करूँगा, एक bill move कीजिए for the underprivileged people जिनकी age is over 65, उनके लिए कोई रिलीफ होना चाहिए। एक ज़माने में ट्रेन जहाज़ के टिकट का कोई कंसेशन होता था बाकी जगहों में, बट हम उसको कैल हु कैन अफोर्ड, उनका नहीं, बट हु कांट अफोर्ड, उनके लिए स्पेशली एक मैं रिक्वेस्ट करूँगा गवर्नमेंट अगर मूव कर ले बिल। Usama Ahmed Mela Sahab to move item number 25. Move for leave to introduce a bill further to amend the Publication of Laws of Pakistan Act 2016, the Publication of Laws of Pakistan Amendment Bill 2025. Law Minister, do you oppose it? सर मैं बड़े अदब और एहतराम से बिल्कुल इसे अपोज करूँगा सर। उसकी वजह ये है कि जो स्कीम ऑफ थिंग्स है हुकूमत को और रियासत को चलाने की, वो बड़ी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है और बड़ा सोच समझ के ये किया गया। जो सबॉर्डिनेट लेजिस्लेशन है, इट इज़ ऑलवेज इन द डोमेन ऑफ द कंसर्न्ड डिवीजन्स एंड मिनिस्ट्री। सो वन जी सर जी तो मैं सर ये अर्ज़ कर रहा था कि जो लेजिस्लेटिव स्कीम में एक पेरेंट लेजिस्लेशन है जो यहाँ पे हो रही है, दूसरी सबॉर्डिनेट लेजिस्लेशन है, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन जिसे रूल मेकिंग और वो कहते हैं। उसका एक तरीक़ाकार है कि जब उस मुतलका कानून में उसकी मुतलका डिवीज़न का जिक्र होता है, लाइन डिवीज़न अगर को कॉमर्स के मुतलका बिल है जैसे ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस का है, तो उसकी डेलीगेटेड लेजिस्लेशन कॉमर्स में ही रहेगी सर, वो लॉ में नहीं आएगी सर। इसकी वजह से बहुत कॉम्प्लिकेशंस पैदा होंगी। मैं इनसे अर्ज़ करूँगा कि इस सारी स्कीम को मैं भी हाज़िर हूँ, मेरे साथ डिस्कस करें, पार्टी में उनकी लीडरशिप बैठी है उनके साथ डिस्कस करें। आई लीव इट ओपन फॉर द कलेक्टिव विजडम ऑफ दिस हाउस, लेकिन आई कांट सपोर्ट दिस बिल। It would be more apt and appropriate if we examine it and then place it for consideration. तो मेरी ये इस्तदा होगी कि पहले मैंने कह दिया, आपके सर तस्लीम खम कर दिया, इसकी हद तक स्पेस दें और इसे फ़िलहाल आप डिफ़र करवा लें, इसको एग्ज़ामिन कर लें। आपके कलीग्स बैठे हैं, पार्लियामेंट्री लीडर है, मैं भी मौजूद हूँगा। कोई ऐसी चीज़ ना हम करें जिसकी वजह से जो ऑफिशियल वर्किंग है गवर्नमेंट की उसमें बेहतरी आने की बजाय कॉम्प्लिकेशंस आए। दिस इज़ माय रिप्लाई टू दिस। जी सैयद नवीद कमर साहब, ठीक है जी ठीक है, तो इसको हम फिर ड्रॉप कर रहे हैं आइटम नंबर 28 को भी। आइटम नंबर 29 उसामा मेला साहब टू मूव आइटम नंबर 29, नॉट प्रेजेंट, ड्रॉप। 30 ड्रॉप। चौधरी महमूद बशीर साहब टू मूव आइटम नंबर 31। गुना होगा ना, वो नहीं हो सकता। Shall I move that the delay in the presentation of report of Standing Committee on the bill further to amend the Constitution of Islamic Republic of Pakistan, the Constitution Amendment Bill 2024, Article 9A, till today be condoned. Now I put the motion to the House. It has been moved that the delay in presentation of the report of the Standing Committee on the bill further to amend the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan, the Constitution Amendment Bill 2024, Article 9A, till today be condoned. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it. Consequently, motion is adopted. Chaudhry Mahmood Bashir Sahab to move item number 32. Sir,
I present the report of the Standing Committee on the bill further to amend the Constitution of Islamic Republic of Pakistan, the Constitution Amendment Bill 2024, Article 9A. The report of the Standing Committee on a bill further to amend the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan, the Constitutional Amendment Bill 2024, Article 9A stands presented. Chaudhry Mahmood Bashir wakes up to move item number 33. Thank you, sir. I hereby move that the delay in the presentation of report of the Standing Committee on the bill further to amend the Constitution of Islamic Republic of Pakistan, the Constitution Amendment Bill 2024, Article 198, till today be condoned. Now I put the motion to the House. It has been moved that the delay in presentation of the report of the Standing Committee on the bill further to amend the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan, the Constitution Amendment Bill 2024, Article 198 till today be condoned. All those in favor of the motion may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it. Consequently, motion is adopted. Chaudhry Mahmood Bashir wishes up to move item number 34. Sir, with your permission, I hereby present the report of the Standing Committee on the bill further to amend the Constitution of Islamic Republic of Pakistan, the Constitution Amendment Bill 2024, Article 198. The report of the Standing Committee on a bill further to amend the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan, the Constitutional Amendment Bill 2024, Article 198 stands presented. मैं हाउस का सेंस लेना चाहूँगा चूँकि शाहिदा रहमानी साहबा थी नहीं आइटम नंबर 17 पे और वो हमने ड्रॉप कर दिया था, तो पटेल साहब और नवीद साहब अगर आप इजाज़त दे दें, बिकॉज है तो गुनाह वाली बात कि न अपनी एक बिल मूव के फिर बाहर चले जाना और फिर आखिरी दफ़ा पटेल साहब का माइक खोलें, क्या कह रहे हैं? सर मैं कह रहा था सर है तो वाकई बिल्कुल ये खिलाफ कानून, लेकिन एक बार आखिरी चांस दे दें। आपको भी दिया जाएगा एक दफ़ा। हाँ, आप वैसे बहुत रेगुलर हैं माशाल्लाह। जी शाहिदा रहमानी साहबा टू मूव आइटम नंबर 17। थैंक यू सो मच स्पीकर साहब, और ख़ास तौर पे कादिर पटेल साहब हमारे कुलीग और तमाम अरकान असम्बली का कि जिन्होंने मुझे अगेन चांस दिया और इंशाल्लाह आइंदा ऐसा नहीं होगा। I will to move for leave to introduce a bill further to amend the Islamabad Preservation of Landscape Ordinance 1966, the Islamabad Preservation of Landscape Amendment Bill 2025. Minister Interior, do you oppose it? लंबी सांस लेके आप खड़े हुए जी। वजारत पार्लिमानी अमूर को वजारत दाखिला से कोई हदायत नहीं है सर इस बारे में, तो इसे रेफर कर दिया जाए कमेटी को। Now I put the motion to the House. The question is the leave to introduce a bill further to amend the Islamabad Preservation of Landscape Ordinance 1996, the Islamabad Preservation of Landscape Amendment Bill 2025 be granted. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it. Leave to introduce the bill is granted. Shahida Sahiba to move item number 18. I also to introduce the bill. The bill in question stands introduced. Riaz Pirzada Sahab, आप point of order पे एक मिनट ये भी बात नूर आलम साहब भी बात करना चाहिए। जी पीरजादा साहब। शुक्रिया स्पीकर साहब, मैं लीडर ऑफ द ऑपोजिशन बात कर रहे थे पानी के मसले पे। ये वाटर सतलुज जो ट्रीटी हुई थी, इंडस ट्रीटी, उसमें भावलपुर का दरिया सतलुज जो डेजर्ट का दरिया था और रावी और ब्यास बंद किए गए, और वो 1958 में हुआ था। और ये पानी एक सेंसिटिव मसला है जो कि CCI काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में चीफ मिनिस्टर्स होते हैं, प्राइम मिनिस्टर होता है। तो जब मैं IPC में था तो सिंध और पंजाब का आपस में डिस्कस होता था, सिंध और बलूचिस्तान का। तो आजकल TV पे बैठ के एक ऐसे बयानात दिए जाते हैं कि जिस पब्लिक को गुमराह करने के लिए कि आपका हक मारा जा रहा है। ये हक इस तरह नहीं मरते। हक तो उस वक्त हुआ कि जब दरिया बंद हो गया, और ये डेजर्ट का जो पानी है ये अगर जाएगा 1 लाख एकड़ को, तो ये भावलपुर का एक हिस्सा जो है वो दयावीर बादशाह डैम में 46% जो पंजाब का आएगा, उसमें से हम मुतालबा कर रहे हैं कि अगर ये पानी जाएगा भी सही तो पंजाब के उस हिस्से से भावलपुर को पानी दिया जाए जो जितना हिस्सा हमारा दरिया में बंद हुआ है। तो इसलिए मिसलीड करने के लिए और ये बयान देने के जनाब ये हुकूमत जो है ये पानी दे रही है डेजर्ट को, तो अभी तक तो नहरें भी नहीं बनी, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बना, तो कैसे ये पानी चला गया? जब एक ऑनरेबल लीडर ऑफ द हाउस और लीडर ऑफ द ऑपोजिशन जब बात करें
तो उसमें एक सदाकत होनी चाहिए। इस तरह के बयानात देना जिस तरह ये आजकल हो रहा है असेंबली में, हमारे असेंबली का क्या इमेज जाता है बाहर कि एक गैर जिम्मेदाराना बयान देना, पब्लिक को मिसलीड करना। और वो आपने ठीक कहा है कि कुछ असेंबली नाजायज़ है और कोई जायज़ हो जाती हैं। तो अगर पार्लियामेंट इसी तरह वर्क करेगा तो फिर वजूद पार्लियामेंट जो है वो तो हम खुद उसको इमेज उसका टार्निश कर रहे हैं। तो कम से कम हमारे सियासी जो सीनियर्स हैं, और पानी के मसले पे हमारे बहुत सीनियर लीडर्स सिंध से बात करते हैं, खुर्शीद शाह साहब, नवीद कमर साहब और बाकी जितने चीफ मिनिस्टर सिंध और चीफ मिनिस्टर मालिक साहब थे जब मैं CCI में था, तो इन पर बड़ी डिटेल्ड डिस्कशन होती रही है। और ये वाकई पानी ऐसी मसला है कि ये तो मुल्कों का भी आपस में तनाज़े हैं, ये तो हमने आपस में बांटने हैं। तो बहावलपुर को एक्सप्लॉयट न किया जाए, न डेजर्ट को एक्सप्लॉयट किया जाए। पानी का अगर हम भी बहावलपुर के नुमाइंदे असेंबली में बैठे हुए हैं और हम अपना तहफ़्फ़ुज़ करना जानते हैं, और इंशाअल्लाह ऐसे कोई ऐसा अमल नहीं होगा जिससे कि बहावलपुर की डेजर्ट को ज़्यादा पानी मिल जाएगा। आपने हमारा एक दरिया बंद किया हुआ है और हमारा हिस्सा है उसमें, तो हम वो हिस्सा भी क्लेम करते हैं। और मैं असेंबली के फ्लोर से कह रहा हूँ कि मैं इस चीज़ के लिए हमेशा आवाज़ भी बुलंद करता हूँ, और अपना जितना सरकारी तौर पे कभी जहाँ भी गुफ्तगू होती है हम अपने इलाके के जो मसाइल हैं और अपने लोगों की नुमाइंदगी भरपूर तरीके से कर सकते हैं। लिहाजा हमारी जगह किसी और को बोलने की ज़रूरत कोई नहीं है। जी नूर आलम खान साहब, पॉइंट ऑफ ऑर्डर। शुक्रिया जनाब स्पीकर। जनाब स्पीकर, वाकई तकरीबन 1 साल के बाद हमें ये फ्लोर मिला है और अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि जो इस हाउस में जाते हैं, शोर शराबा करते हैं, फिर उसके बाद अपना टाइम भी ज़ाय करते हैं, हाउस का टाइम भी ज़ाय करते हैं, लेकिन आज उन्होंने जो शोर शराबा करके चले गए तो हमें भी मौका मिला कुछ अपने हल्के की बात कर सकें, अवाम की बात कर सकें, मुल्क की बात कर सकें। जिस मकसद के लिए ये असम्बली मुंतखब हुई और जिस मकसद के लिए हमने हलफ उठाया कि हम पाकिस्तान की सबसे बड़ी जो नेशनल असम्बली है उसमें आकर मुल्क के बारे में बात करेंगे, अवाम के बारे में बात करेंगे और अपने मसाइल जो हैं उनके बारे में बात करेंगे। लेकिन बदकिस्मती से पिछले 1 साल से हम देख रहे हैं कि यहाँ पर तो ना मुल्क की बात करने दी जाती है, ना अवाम की बात करने दी जाती है, ना आइन और कानून की बालादस्ती की बात करने दी जाती है, ना इंसाफ की बात करने दी जाती है। और जो लोग यहाँ आए हैं अपोजिशन वाले हमारे दोस्त, माशाल्लाह अपोजिशन सारे उठकर एक आदमी अपने बात करके फिर शोर शराबा करना शुरू कर देते हैं। जब अवाम की बात होती है, जिस तरह कि आज प्राइवेट मेंबर डे था, बहुत सारी अच्छी यहाँ पर तजावीज़ आई, बहुत सारे जहाँ पर तहरीक आई जो अवाम से मुताल्लिक थी। चाहिए तो ये था अपोजिशन की जिम्मेदारी बनती है कि वो उसमें पार्टिसिपेट करते, अपनी तरफ से अवाम की कोई बात हो उसकी हिमायत करते, लेकिन उन्होंने जो हलफ उठाए उसकी बिल्कुल खुद ही नफ़ी कर रहे हैं। और मुझे ये भी कहने में बड़ा अफसोस होता है, उनमें से एक मुअज़्ज़ज़ मेंबर ये कह रहा है कि आप हराम खा रहे हैं। हराम कौन खा रहा है? हराम वो खा रहा है जो हलफ की खिलाफ वर्जी कर रहा है। हराम तो वो खा रहा है कि जिस मकसद के लिए यहाँ आए थे उसके लिए वो अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहे। एक मुजरम की हमायत में उठकर आकर ये शोर शराबा करते हैं, तो ये उनको सोचना चाहिए कि कौन हराम खा रहा है, कौन हलाल खा रहा है। फिर सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर हम तो देखते रहे कब अवाम की बात होगी और किस तरीके से, यानी ये आते हैं कितना अवाम का जो नुकसान कर रहे हैं। यहाँ रोज आकर यहाँ जो एजेंडा है वो फाड़ा जाता है, जो कार्रवाई है वो फाड़ी जाती है, इस पर अवाम का पैसा खर्च नहीं हुआ था और फिर आकर हाजियां लगाकर तनख्वाहें ले रहे हैं, टीए लिया जा रहा है, तो उसकी वो मुखालिफत नहीं करते। बड़ी अच्छी बात की स्पीकर साहब ने, कोई मेंबर अगर नहीं लेना चाहता वो तहरीरी तौर पर स्पीकर साहब को दे, बेशक से वो ना ले, बल्कि मैं तो ये तजवीज़ दूंगा कि एक मेंबर की परफॉर्मेंस देखनी चाहिए, डिबेट होना चाहिए कि यहाँ पर किसने इस मुल्क के अवाम
आइन के लिए बात की, अवाम के मफाद की बात की और उस पर कितना वक्त खर्च किया। अगर इसके खिलाफ कोई बात की गई तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, उससे कोई भी रियायत और कोई भी उसको तनख्वाह वगैरह या मराहत कुछ भी नहीं मिलनी चाहिए। ये भी हम अपने आप पर अगर कायदे ज़ाबत आयद करेंगे, अपने आप को पाबंद करेंगे, फिर हम मुल्क की बात कर सकते हैं, अवाम की बात कर सकते हैं। जनाब चेयरमैन, बात यह है कि जिस तरह के हमारा फर्ज बनता है पहले पाकिस्तान की बात करें, उसमें चाहे KPK है, चाहे पंजाब है, सिंध है, बलूचिस्तान है, पहले पाकिस्तान है, उसमें सारे सूबे भी हैं। फिर उसके बाद जहाँ जहाँ से हम इलेक्ट होकर आए उन लोगों के अवाम की बात है, सूबों की बात है। हम यहाँ इस असेंबली में आए, कम अज कम एजेंडा इस पर बात करें। नूर आलम खान जो बात कर रहे हैं, बिल्कुल यहाँ लॉ एंड ऑर्डर पर डिबेट होना चाहिए, यहाँ एजुकेशन पॉलिसी पर डिबेट होना चाहिए, हेल्थ पर डिबेट होना चाहिए, रोजगार बेरोजगारी पर होना चाहिए, अवाम के आए दिन महंगाई वगैरह इन चीज़ों पर डिबेट होना चाहिए। लेकिन यहाँ तो आकर सिर्फ जाती बात, जो अपोजिशन लीडर चले गए वो मौजूद होते हैं, उन्हें कम अज कम ये अखलाकी तौर पर ये हौसला रखना चाहिए, वो खुद बैठना चाहिए उनको कि जितने भी इल्ज़ाम वो लगा कर गए उसको जवाब तो सुनते, और उसमें कम अज कम जहाँ वो खुद जिम्मेदार है, 3 नस्लों से वो हुकूमतों का हिस्सा रहे, हर असेंबली में उनकी नुमाइंदगी कुछ ना कुछ रही है, अगर कुछ गलत किया है तो उसमें वो भी तो जिम्मेदार है। और फिर वो इंडिविजुअल एक एक मेंबर पर जहां कहीं किसी ने रेड किया है, कोई गलत हो, उसका नाम लेकर बात करते हैं, तो पूरे मुल्क के 25 करोड़ अवाम पर आए रोज जो अगर नाइंसाफ़ी होती है, ज्यादती होती है, कोई रेड होता है, तो उस पर क्यों नहीं बात हो सकती? ये बात करनी चाहिए। पिछले तकरीबन 3 टेनवर से खैबर पख्तूनख्वा, जिससे मेरा भी ताल्लुक है, खैबर पख्तूनख्वा में वाहिद ये जमात है जिसको PTI कहते हैं कि इसकी 3री दफा वहां पर हुकूमत है। वहां की सूरत हाल देखकर इंसान को अफसोस होता है कि ये सूबा जहां एक ऐसी पार्टी को 3 दफा हुकूमत मिली हुई है, कोई वहां अवाम के मसाइल की बात नहीं होती, अवाम को जो वहां पर रोजगार की बात नहीं होती, डेवलपमेंट नहीं होती। जहां 2013 से लेकर अभी तक वहां जो उनकी हुकूमत रही है, कोई खास डेवलपमेंट बड़ा मंसूबा नहीं है, किसी जगह नहीं है, और ना मतलब वो ये मुतालबा करते हैं। हमें इस बात पर यह भी अफसोस होता है, अगर कोई तजवीज़ लाते, सूबों की बात है, हक रखते हैं, अगर कोई बात वो तजवीज़ ऐसी असम्बली में लाते जो सूबे की अगर हकूक़ की बात की जाती, NFC अवार्ड की बात की जाती, उसमें इंशाअल्लाह हम अपने दोस्तों से भी रिक्वेस्ट करते हैं कि आप भी हिस्सा लें, अपने ख्यालात के इज़हार करते हुए हमारे हकूक़ के बात करें। लेकिन आज आपका पॉइंट आ गया जी, बात कंक्लूड कर लीजिए जी, बस बात 2 मिनट और। आज तकरीबन 1 साल के बाद 2 मिनट नहीं सर, कोई ऐसी तजवीज़ नहीं आई। देखिए, मैं इसलिए बात करता हूँ कि जो ज़रूरी बात इसलिए कि वहाँ एक बहुत बड़ा जो सूबा है जहाँ पर अपोजिशन को तो उन्होंने दीवार के साथ लगा दिया, जो फंड वगैरह मिलते हैं उसमें अपोजिशन को ADP में भी शामिल नहीं किया, उस इलाके को भी शामिल नहीं किया। उसके साथ बड़ा जुल्म तो ये हुआ कि इलेक्शन हुए हैं और डायरेक्ट इलेक्शन हुए हैं, वहाँ पर तहसीलों के चेयरमैन, एक एक तहसील का जो हल्का है वो तकरीबन 2-2, 3-3 MPs के हल्कों से बड़ा है, डायरेक्ट इलेक्शन हुआ है। आज 3 साल हो गए, 3 साल जनाब चेयरमैन, 3 साल से उन लोगों को 1 पैसा भी नहीं दिया गया, अवाम की फलाह बहबूद और उसके डेवलपमेंट के लिए 1 पैसा भी खर्च करना न दिया है, न इजाज़त है, बल्कि इजलास भी उनको करने की इजाज़त नहीं है। तो इससे बड़ी ज्यादती और क्या हो सकती है? बहुत शुक्रिया सरदार साहब, बहुत शुक्रिया जी, पॉइंट आ गया है। मैं ज़रा एजेंडा कंक्लूड कर लूँ जी। सरदार साहब बहुत शुक्रिया, आपकी काफ़ी तफसीली बात आ गई जी। अब जी कुछ जो मेंबर्स सरदार साहब आपने काफ़ी तफसीली 10 मिनट से ज़्यादा आपकी बात रही है जी। मेरे अब हमने एजेंडा भी कंक्लूड करना है। बहुत शुक्रिया सरदार साहब। चलें एक नहीं सर 2 मिनट ही आपने कहा कि 2 मिनट आपने बात कर ली, मैं इसलिए गुजारिश कर रहा हूँ आपसे।
आप एक जो जुमले में हजारा की जो आप जो भी बात करना चाह रहे हैं कंक्लूड करना। माइक खोल लीजिए जी। सरदार साहब मगर गुजारिश है कंक्लूड करें जी प्लीज। सर मैंने ये तफसील इसलिए रखी है, देखें नहीं सर आपने वो वजह बता दी, अपनी बात कंक्लूड हल्के की बात इसलिए करते हैं कि मेरा जो हल्का इंतखाब जिला मानसरा है या उसके साथ हजारा डिवीजन है, उसमें कोई डेवलपमेंट के लिए कोई फंड वो सूबाई हुकूमत नहीं देती। और मैं ये तजवीज़ देता हूँ कि खुदारा अगर मरकजी हुकूमत इस पर गौर नहीं करेगी तो हमारे लोग इसी तरीके से महरूम रहेंगे। जो डेवलपमेंट की अगर NFC अवार्ड का मुतालबा करते हैं उसमें वहाँ से हिस्सा हमें नहीं मिलता, यहाँ से होना चाहिए। और मरकजी हुकूमतें हमारे जो मानसरा का वाटर सप्लाई स्कीम है तकरीबन 15 साल से हमें साफ पानी नहीं मिल रहा और उसके लिए वो मरकजी हुकूमतें सऊदी हुकूमत के साथ जो माहदा करके स्कीम मंजूर कराई है, अब ये सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी बनती थी कि उस पर वो टेंडर लगाते हैं, बजाय इसके उसमें रुकावट भी पैदा करते हैं। और सियासी शोहरत हासिल करने के लिए वहाँ पर सिर्फ वज़ीर आला समेत वहाँ जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है। इसलिए जनाब इस चेयरमैन अर्थ को एक इफेक्टेड एरिया है, अभी तक तकरीबन 250 हमारे स्कूल नहीं बन सके, सड़कें नहीं बनी, अस्पतालें नहीं बनी जिला मानसरा NH14 में। और बार बार हम उनसे मुतालबा करते रहे लेकिन उसके लिए कोई फंड मुख्तस नहीं किया, हालांकि सारे फंड मरकज से ले लिए। ये बात इसलिए हम किस फ्लोर पर करेंगे, यहाँ ही तो हमें मौका मिला। आप ही कहते हैं यहाँ पर मुख्तसर करें, मुख्तसर तो हम 1 साल उनकी सुनते रहे। अब यानी बात ये है कि जो सूबाई हुकूमत PTI की हुकूमत है इस पर भी यहाँ डिस्कस होना चाहिए। उनके जो 15 साल या तीसरा 12 साल हो गए वहाँ उनकी कारकर्दगी क्या रही, उस पर ज़रूर मेरी गुजारिश होगी आपकी वसातत से अपने जो कोलीग्स है कि एक बहुत बड़ा सूबा जो इतना बड़ा मुतासर हुआ है उस पर ज़रूर डिबेट होना चाहिए, डिस्कस होना चाहिए। और उसके लिए वो अक्सरियत में चूँकि यहाँ जो PTI के लोग बैठे हुए बल्कि उन्हें भी मौका दिया जाए, वो भी ज़रूर वहाँ पर बात करें। एक बंदर बांट होती है ज़ाती पसंद पर और जो पैसा जाता है वो मरकज पर हमला करने के लिए इस्तेमाल होता है। यहाँ वो लश्करकशी कर आकर यहाँ इस्लामाबाद फतह करने के लिए आते हैं, हालांकि वज़ीर आला उसने ये हलफ नहीं उठाया कि मैं किसी जगह जाकर लश्करकशी करके इस्लामाबाद फतह करूँगा या कोई और मुल्क फतह करूँगा। उसकी जिम्मेदारी ये बनती थी कि वो सूबे की डेवलपमेंट, सूबे के अवाम की फलाह के लिए काम करें। जो हलफ उठाया इनके मुताबिक उनकी जिम्मेदारी बनती थी, लेकिन उन्होंने ये काम नहीं किया। इसलिए ये बात ज़रूर होनी चाहिए जनाब चेयरमैन, चूँकि ज़िला मानसरा और ख़ास तौर पर मेरा हल्का इंतखाब बुरी तरह मुतासर हुआ है, चाहे वो हेल्थ के हवाले से, एजुकेशन के हवाले से, इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से। ज़लज़ला की वजह से आज तक तकरीबन हमारे 20 साल हो गए, वहाँ अभी तक बिल्डिंगें नहीं बनी, लोगों को सहूलियात नहीं मिली। और बालाकोट सिटी सरदार साहब आपकी बात तजवीज़ भी पूरी आ गई, पॉइंट भी पूरा आ गया जी, बहुत शुक्रिया। मेरी गुजारिश है जी दीगर मेंबर्स बात करना चाह रहे हैं ऑन मैटर्स अदर देन द पॉइंट ऑफ ऑर्डर। नहीं सरदार साहब आपकी 15 मिनट की बात होगी जी, बहुत शुक्रिया। मेरी गुजारिश है जी, मैंने नोट किया हुआ दीगर मेंबर्स ऑनरेबल मेंबर्स बात करना चाह रहे हैं ऑन मैटर्स अदर देन द पॉइंट ऑफ ऑर्डर, मगर उससे पहले हम एजेंडा कंक्लूड कर रहे हैं। 2 कॉलिंग अटेंशन नोटिस रहते हैं जी, तो इफ़ यू नहीं जी कॉलिंग अटेंशन नोटिस 2 मुझे एजेंडा मुकम्मल कर लेने दीजिए, उसके बाद मेरे पास सारी रिक्वेस्ट आई है, जो मेंबर्स बोलना चाहेंगे उनको मौका देंगे। लेट्स कंक्लूड द एजेंडा फर्स्ट जी। एजेंडा आइटम नंबर 2 जी, मिस नुज़रत सादिक टू मूव आइटम नंबर 2। शुक्रिया चेयरपर्सन साहब। मेरा कॉलिंग अटेंशन जो है वो लाइक टू इनवाइट अटेंशन ऑफ द मिनिस्टर फॉर इकोनॉमिक अफेयर्स टू अ मैटर ऑफ अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस रिगार्डिंग सस्पेंशन ऑफ US foreign aid programs leading to closure of over 60 essential public health facilities causing grave concern amongst the public. Parliamentary Secretary Dr. Darshan to make a brief statement. जी शुक्रिया स्पीकर साहब, ये बात बिल्कुल ठीक है जो हमारी बहन ने कहा है, लेकिन इस पे मैं इनको ये बताता चलूँ कि ये जो उन्होंने पास दिया है 90 डेज़ का,
तो इस पास में काम रुक नहीं जाता, काम तो चलता रहता है। और उसके लिए क्योंकि ये एक लॉन्ग टर्म प्रोग्राम्स होते हैं, 3 महीने या 6 महीने के प्रोग्राम्स नहीं होते, तो उसी में मैं इनको ये बताना चाहता हूँ कि ये प्रोग्राम जो है वो चल रहे हैं और वो चलते रहेंगे। ये 90 डेज का पास है, उसमें वो रिव्यू करेंगे। अगर उसी में वो इस फंड्स को बंद करते हैं तो इसको हम देख लेंगे, फिर हम उनसे बात करेंगे, प्राइम मिनिस्टर से भी बात करेंगे ताकि इसको कैसे हम मैनेज कर सकते हैं। तो इसके लिए हम इनको ये बताना चाहते हैं कि ये परेशान ना हो, ये प्रोग्राम चलते रहेंगे क्योंकि ये ज़रूरत है हमारे पाकिस्तान की। और इसी में अगर ये उन्होंने बंद कर दिए तो इसको हम जो है फिर आगे देखेंगे कि इसको किस तरीके से चला सकते हैं। Thank you. Ms. Nuzhat Sadiq to ask one question. जी बहुत शुक्रिया। यकीन दहानी करा रहे हैं कि इंशाल्लाह ये प्रोग्राम चलते रहेंगे। गुड टू हेयर दैट। मगर ये जो प्रोग्राम बंद हुए हैं, यूएस ने किया है, डिसीजन लिया है, ये जो है ये रिलेट करते हैं फंडिंग डेवलपमेंट एंड लाइफ सेविंग हेल्थ सर्विसेज के हवाले से, और स्पेशली ख़वातीन और बच्चियाँ उनके हवाले से जो उनको इफ़ेक्ट करेगा ये, और पाकिस्तान को यकीनन करेगा इफ़ेक्ट, इसमें कोई शक नहीं है। बट एक एस्टिमेट के मुताबिक 1.7 मिलियन लोग हैं जो इससे मुतासर होंगे। और ख़ाली ये हेल्थ के हवाले से नहीं है, ये इनका जो है वो काम एग्रीकल्चर के हवाले से भी इसमें है, आर्कियोलॉजिकल भी है, और 60 जो जिसा हमने कहा उसमें कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ यूनिट्स हैं जो बंद होने जा रहे हैं। इसको उन्होंने कहा है यूएस ने कि रिव्यू करेंगे, 90 डेज़ का भी कहा है, और ये भी टाइम लग सकता है, इसमें कई महीने लग सकते हैं। आई एम श्योर जो ये वैक्यूम बीच में हुआ है उसमें डेवलपिंग कंट्रीज़ जो या डेवलप कंट्रीज़ हैं वो भी अपना किरदार अदा करेंगी, शायद वो हेल्प करें। पर इसमें एक ब्राइटर साइड पे मैं सिर्फ ये निशानदेही करना चाहती हूँ कि ब्राइटर साइड ये भी है कि हो सकता है पाकिस्तान जो है वो सेल्फ रिलायंस हो, इसमें आ जाए और सेल्फ रिलायंट हो जाएँ, और हो सकता है कि वो इंशाल्लाह एम्बार्क करेंगे एक जर्नी ऑफ सेल्फ रिलायंस पे। इसके ऊपर इसलिए मैंने ये बात की कि क्या हम ये कर सकते हैं, तो गवर्नमेंट अगर एश्योर करा दे कि इंशाल्लाह हो जाएगा तो फिर बहुत अच्छी बात है, फिर हमें इसकी फ़िक्र नहीं होगी कि बच्चियों के प्रोग्राम या हेल्थ के हवाले से या ख़वातीन के जो हैं वो सफ़र करेंगे। शुक्रिया जी। डॉक्टर दर्शन जी शुक्रिया स्पीकर साहब। सबसे पहले तो मैं इनको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट प्रोजेक्ट होते हैं वो तकरीबन 4 प्रोजेक्ट हैं, और उसी में $484 मिलियन की जो एड है, तो उसी में $50 मिलियन की एड है, उसमें $484 मिलियन तो आ चुके हैं, उसमें 23 मिलियन रहते हैं। जो मैं समझता हूं कि उसमें तकरीबन काम जो है ना वो हमने लिखा है प्रोविंसेस को जिनके साथ उनके हैं, और HEC की जो स्कॉलरशिप से सबसे बड़ी और अच्छी बात यह है कि स्कॉलरशिप्स कोई डिस्टर्ब नहीं हुई, उसी में तकरीबन फंडिंग हो गई है। तो हमने फिर भी उनको लिखा है कि वो हमें बताएं कि किस किस चीज़ में आपको और चीज़ की ज़रूरत है या पैसे रहते हैं और वो कब तक वो कंप्लीट होंगे। इसके अलावा जो हेल्थ के रिलेटेड प्रोग्राम है वो डायरेक्ट गवर्नमेंट के साथ नहीं है, वो उनके पार्टनर्स जो हैं, ग्लोबल पार्टनर्स हैं, जैसे WHO वाले हो गए या ऐसे और भी हैं, डोपास हैं, तो उनको भी हमने लिखा है और प्रोविंसेस को भी लिखा है कि कितने प्रोग्राम USAID के तहत यहाँ पे चल रहे हैं। तो वो हमें पूरी वो डिटेल बताएंगे कि कितने प्रोग्राम चल रहे हैं और कितने के उनके फंड्स अवेलेबल हैं और कितनी की उनको ज़रूरत है। क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि ये 2-4 दिन या 2 महीने का प्रोग्राम नहीं होता, ये 90 डेज़ का पास है, तो तब तक तो ये प्रोग्राम चलते रहेंगे। उसके बाद भी हमने उनको लिखा है, प्रोविंसेस को लिखा है कि वो हमें डिटेल बताएं, बल्कि हमने US गवर्नमेंट को भी लिखा है, USAID को भी लिखा है कि वो हमें डिटेल दें कि इसमें जो है वो क्या आगे वो कर सकते हैं। तो जैसे प्रोविंस से या और जगह से रिपोर्ट आ जाएगी तो वो भी हम यहाँ पे इनके सामने रख देंगे और वो बताएंगे कि आगे क्या हो सकता है। लेकिन ये मैं इनको श्योरिटी ज़रूर दिलाता हूँ कि ये प्रोग्राम अभी बंद नहीं हो रहे, ये प्रोग्राम चलते रहेंगे। उसको आगे हम देखेंगे कि इसको फिर आगे कैसे चलाएंगे। जी शुक्रिया। मिस आजिया नाज तनोली टू आस्क वन क्वेश्चन। बहुत शुक्रिया सर। अब सर ने तो बहुत अच्छे तरीके से बताया, पार्लिमानी सेक्रेटरी साहब ने, कि जी हम परेशान भी नहीं हो रहे। लेकिन सर बहुत सारे प्रोग्राम्स ऐसे हैं जिसमें बहुत से स्मॉल फंडेड प्रोग्राम्स भी हैं इसमें शामिल। तालीम है, एनर्जी है, हेल्थ है, कल्चर है, पानी है, वाइल्ड लाइफ है, इंटर्नशिप प्रोग्राम्स हैं, इकॉनमी ग्रोथ है, ख़वातीन के मसाइल से मुतालिक प्रोग्राम्स हैं। और मैं ये भी कहूँगी कि 90 दिन के जो पॉज प्रोग्राम्स है, अगर ये 90 दिन के हो चुके हैं तो नेक्स्ट हुकूमत के पास क्या ऐसा मुतबादिल मौजूद है जो इसके बाद भी चलता रहेगा। और इंटर्नशिप प्रोग्राम्स के अलावा बहुत सारे प्रोजेक्ट जो हैं वो कर रहे हैं, तो कोई ना कोई मुतबादिल तो मौजूद होना चाहिए
ताकि ये फंड्स रुके नहीं, और सफारती ताल्लुकात में इसमें क्या बेहतरी हो सकती है, ताकि सफारती ताल्लुकात में बेहतरी होगी तभी ये फंड रिलीज़ भी होंगे। उसके लिए क्या जो है ऐसा टेकअप लिया गया है कि 90 दिन के बाद अगर फ़र्ज़ करें ये फ़ंड रुक जाते हैं तो ऐसा क्या प्रोजेक्ट आपके पास मौजूद है USAID का कि आप इसको जारी रख सकें? जी डॉक्टर दर्शन। शुक्रिया स्पीकर साहब। जिस तरह इन्होंने बताया एग्रीकल्चर का, वाटर का, रूरल डेवलपमेंट का, ये तो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट फंड्स हैं। इसमें मैंने इनको बताया कि $50 मिलियन जो है इनकी टोटल एड थी और इसमें $484 मिलियन आ चुके हैं और इसमें $23 मिलियन रहते हैं और ये इतना बड़ा अमाउंट नहीं है जिसको हम यहाँ पे कवर न कर सकें। लेकिन उसके बावजूद भी हमने जिनके साथ ये प्रोग्राम्स हैं जैसे HECA, फाटा KP के साथ है और सिंध वालों के साथ है, तो उनको हमने लिखा है कि वो हमें डिटेल्स दें और जैसे वो डिटेल्स देंगे तो हम उसको आगे परसू करेंगे। लेकिन मैं अपनी बहन को ये खुशखबरी सुनाऊं कि इसमें सिर्फ $23 मिलियन रहते हैं, ज़्यादा नहीं रहते, तो वो भी 90 डेज का पास है। तो मैं समझता हूं कि ये रिव्यू होंगे और ये फिर दोबारा चलने शुरू हो जाएंगे। शुक्रिया जी। शुक्रिया जी। महबूब शाह साहब का माइक ऑन करें जी। नेल्सन नजीम साहब, पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी, टू मेक अ ब्रीफ स्टेटमेंट। सर बात तो मेरी बहन ने बड़ी ठीक कही है, लेकिन माइक पहले खोल देना तो। नेल्सन नजीम साहब का माइक ऑन कीजिए जी। बात तो इन्होंने ठीक की है, लेकिन इसका जवाब देने से पहले मैं एक छोटी सी बात करना चाहता हूं। जो अभी बात हुई अमेंडमेंट के हवाले से, जीवा साहब ने बात की माइनॉरिटीज की सीटों के एनहांसमेंट। मेरी गुजारिश है नेल्सन नजीम साहब, वो सेपरेट फिर आप मैटर्स अदर देन पॉइंट्स ऑफ ऑर्डर पे बात कीजिएगा। कॉलिंग अटेंशन पे आप काइंडली इसका जवाब दीजिए, उसका आपको सेपरेट मौका मिल जाएगा जी। चेयरमैन साहब, मैं उसी पे मैं बात नहीं ज़्यादा करना चाहता। मैं ये स्टेटमेंट जो पार्लियामानी अमूर के मिनिस्टर साहब ने और लॉ मिनिस्टर साहब ने की है, मैं उसका दरमियानी हिस्सा जो लाइनों के दरमियान का है वो उन्होंने इज़हार किया है कि माइनॉरिटीज़ की 1973 से लेकर अभी तक उसकी आबादी नहीं बढ़ी। तो अगर उसकी आबादी नहीं बढ़ी तो इसलिए सीटें नहीं बढ़ी हैं। तो मैं तो ये कह रहा हूँ कि माइनॉरिटीज़ बांझ नहीं हो गई है, उसकी आबादी बढ़ रही है दूसरों के साथ। बस यही बात करनी थी मैंने। अच्छा, इस कॉलिंग अटेंशन की बात यहाँ तक हो रही है, वो ये रही है कि जब 2010 से लेकर 2020 तक तो इसकी फीस जो थी वो 9 लाख के करीब थी, 9,97,000 थी। इसमें इंटरफेयर किया चीफ जस्टिस ने, लोगों ने एहतजाज किया, ये 6 लाख से 9 लाख तक हो गई। फिर जब ये PMDC से PNC बनी तो उस दौर में 2020 से लेकर 2022 तक उन्होंने प्राइवेट सेटअप को खुली छुट्टी दे दी। शुतर बेमहार हो गया। उस वक्त इन्होंने अपनी मर्जी से इसको 20 लाख से 30 लाख तक अपनी मर्जी के साथ बढ़ाई, इनको किसी ने चेक नहीं किया। फिर जब 2023 में वापस PMDC बनी तो PMDC ने इसको रिव्यू किया और उन्होंने जो है इसको दोबारा देखा और उन्होंने कहा कि इस एक्ट के तहत आप जो भी फीस लेते हैं 5 साल का शेड्यूल हमें दें। और उस एक्ट के दूसरे हिस्से में था कि हम इसको वेरीफाई करेंगे कि आपने क्यों ज़्यादा किया। इस पर प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो है इंटरेस्ट लिया, उनकी डायरेक्शन पर एक कमेटी बनी, उस कमेटी को चेयर किया डिप्टी प्राइम मिनिस्टर साहब ने और उन्होंने एक सब कमेटी बनाई और सब कमेटी ने इनकी ऑडिट रिपोर्ट्स देख के, इनको एवेल्युएट करके, इनकी जो है महंगाई के तनासब को जिक्र उसको इंक्लूड करके उन्होंने एक रिपोर्ट तैयार की और वो रिपोर्ट जो है डिप्टी प्राइम मिनिस्टर साहब को भेजती है ताकि वो कमेटी के तौर पर इसको PM साहब को भेजें। तो ये प्रोसेस जो है वो जारी है
और उस कमेटी ने बड़ी हद तक इस फीस को कम किया है, जो कि मेरा ख्याल है आम पब्लिक के लिए मुनासिब होगा, लेकिन अनाउंस तो वो कमेटी करेगी। जी शुक्रिया जी। मिस आलिया कामरान टू आस्क वन क्वेश्चन। ये जो फीसें मुकर्रर हुई थी 9,97,000, ये सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन पर मुकर्रर हुई थी, लेकिन उसके बाद जब ये PNC बन गया तो उन्होंने उस डायरेक्शन को भूल दिया और वो फिर इंडिविजुअली उन्होंने फीसें बढ़ाई। ये बहुत ज़रूरी है डॉक्टर्स की तादाद बढ़नी, मेडिकल कॉलेजेस बढ़ने, लेकिन वो जब हमने प्राइवेट सेक्टर को दे दिया और प्राइवेट सेक्टर ने अपनी मनमानी की, यही बातें हम अगर अपने जो गवर्नमेंट के अदारे हैं उनकी सीटों को एनहांस करने का सोचा जा रहा है कि वो उसको एनहांस करके ताकि इस डेफिशिएंसी को पूरा किया जाए। जी मोहम्मद उस्मान बादीनी साहब टू आस्क वन क्वेश्चन। इसमें जो 5 साल फीसें 30-30 लाख देगा, डेफिनेटली उसकी अमाउंट बढ़ेगी, उसकी इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, लेकिन इसके लिए मैं इतना कहता हूं कि गवर्नमेंट कंसर्न्ड है, वो इसकी फीसें कम करना चाहती है और ज़बरदस्ती कराएगी कि जो वो कमेटी बनी है, कमेटी की सिफारिशात जब जाएंगी, जो फोरम पे जाएंगी, वो मंजूर होगी तो डेफिनेटली उस डिसीजन को इम्प्लीमेंट किया जाएगा और जो आम आदमी को रिलीफ मिलेगा। जी नूर आलम खान साहब टू आस्क वन क्वेश्चन। सर आपने से बात की है, नूर आलम साहब गुजारिश है मैं पाबंदी रूल्स के मुताबिक करने का। आपके सवाल के दौरान आपका सवाल जब मुकम्मल हुआ मैंने तब, जब आपकी बात मुकम्मल हुई मैंने तब उनसे किया। The House is adjourned to meet again on Wednesday, 12th February 2025 at 2 p.m.